So, today our topic is categories of mobile phones. A mobile phone that is only a mobile phone and not much more is called a basic mobile phone. A mobile phone that provides some additional features over the basic phone like a music player, video player, simple games, limited web browsing, basic support for third party applications, etc. is called a feature phone. Even though there are no standard definition of these terms, the key feature of a smartphone are touch screen operations, full web browsing capability, the availability of office productivity applications, a powerful programming system that enables development of a rich and diverse set of software applications that go much beyond the functions of a mobile phone. One or more applications stores from where new applications means free as well as paid may be downloaded, a range of sensors device for input, etc. So a mobile phone that is only a mobile phone. तो एक मोबाइल फ़ोन जो सिर्फ एक क्या है, मोबाइल फ़ोन है और कुछ नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक मोबाइल फ़ोन. और एक मोबाइल फ़ोन जिसके बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसमें एग्जांपल भी दिए हैं, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, सिंपल गेम्स, लिमिटेड वेब ब्राउजिंग, सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. तो इसे हम क्या कहेंगे, फीचर्स फ़ोन. और स्मार्टफोन के की फीचर्स है टच स्क्रीन ऑपरेशंस, फुल वेब ब्राउजिंग कैपेबिलिटी, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, एक शक्तिशाली, एक पावरफुल प्रोग्रामिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के ड्राइवर्स सेट को डेवलप करता है. A smartphone or a tablet in bracket or phablet is actually a small computer and functions as well as a combination of a phone, a personal digital assistant in bracket PDA, providing secretary like functions in bracket calendar with scheduling, memos and notes, to-do lists, meeting reminders, access to office documents, messaging service or instant email notifications, etc. and a portable entertainment hub. However, with improvement in technology, each category is moving up the features ladders and release or intermediate models by companies blurs the lines between these categories. Often the distinction is made based on price, with the three categories mentioned above sporting successively higher price tags. So, a smartphone or a टैबलेट. तो एक स्मार्टफोन या एक टैबलेट जिसे क्या कहते हैं, इन ब्रैकेट में है फैबलेट. तो वो एक्चुअल में क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटर है और वह एक फ़ोन है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ये PDA का फुल फॉर्म है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. तो ये जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो सेक्रेटरी की तरह अपना वर्क कंप्लीट करता है. तो यहाँ सेक्रेटरी के वर्क्स भी दिए हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग के साथ साथ कैलेंडर, मेमो एंड नोट, टू डू लिस्ट, मीटिंग रिमाइंडर, ऑफिस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना, मीटिंग सर्विस, मैसेजिंग सर्विस या फिर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, ये सारे सेक्रेटरी के वर्क्स हैं. टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ सारे जो कैटेगरीज है वो अपने फीचर्सों को सुधार कर नए और मध्यस्थी मॉडल कंपनियों द्वारा बाज़ार में उसको डेवलप किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं और उनकी कीमतों के आधार पर उनका ऊपर दिए गए 3 कैटेगरी उनका विभाजन किया गया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एंड्रॉयड. Android is a free and open source operation system. Android is a free and open source operating
system for smartphones that is being developed by the Open Handset Alliance, whose most prominent member is Google. INC. Android uses a slightly modified version of the Linux kernel. It is designed to support a diverse set of devices. Even though the list of devices running Android include watches, phones with small screens and only numeric QWERTY keyboards, touchscreen phones, mid-size phablets means combination of phone plus tablet is called phablets. Larger size tablet, computers, TV and even microwave ovens. The operating system is primarily designed to provide a rich and attractive user experience and a large number of small software applications means app for smartphones and tablet computers. At the time of writing this, Android is world's #1 operating system for smartphones in terms of volume shipments means number of phones sold. Many leading mobile phone manufacturers make एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन हैंडसेट अलायंस द्वारा डेवलप की गई है और जिसका गूगल इन कॉरपोरेशन एक बहुत ही फेमस और प्रचलित मेंबर है। एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल की ज़रा सुधरी आवृत्ति का उपयोग करता है और वो डिवाइस के ड्राइवर सेट का सपोर्ट करती डिज़ाइन की गई है। एंड्रॉयड को रन करती डिवाइस की लिस्ट में वॉच, स्मॉल स्क्रीन और न्यूमेरिक या QWERTY कीबोर्ड वाले फ़ोन, टच स्क्रीन फ़ोन, मिड साइड फैबलेट्स, लार्ज साइड टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी और माइक्रोवेव ओवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिच और अट्रैक्टिव यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। स्मार्टफोन के लिए बहुत सारी छोटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनें, उन्हें कहते हैं हम ऐप्स, और टैबलेट फ़ोन का समावेश होता है। और लिखते समय, राइटिंग के समय एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए दुनिया का #1 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका वॉल्यूम शिपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ की फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड प्रोवाइड्स सेवरल फीचर्स एंड बेनिफिट्स as a smartphone or tablet operating system. It is free and open source and it is not tied to one particular device maker. Manufacturers also have the options of tweaking the operating system and making changes and or improvement that distinguish their product from other because the source code is available. Because of competition among the manufacturers, prices are relatively lower and companies constantly try to add new features to their devices. It provides an attractive user interface and rich multimedia support. It has support for accessing and controlling almost all hardware features of the latest smartphones and tablets, like touchscreen with multi-touch gestures, phone location information means positioning using satellite, motion sensors, wireless networking, 2G, 3G and 4G mobile network, Wi-Fi, Bluetooth, near field communication or NFC, voice and video telephony, text messaging means SMS, internet access, listening to podcast means live audio on the internet, watching webcast means live video on the internet, and live TV programs, camera, microphones and speakers, etc. Not only from the built-in application but also from third-party applications and our own applications. Clever use of inputs from this diverse set of sensors along with Android's built-in capabilities allows the development of innovative, highly interactive, very useful and visually stunning apps with creative modes of interacting with the device. So key features of Android means Android के है वो कौन से हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कुछ फीचर्स और सुविधाएं हमें
प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जो एंड्रॉयड है वो स्मार्टफोन और टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हमें बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है, और वो एक फ्री एंड ओपन सोर्स है और किसी विशेष डिवाइस मेकर से करारबद्ध नहीं है। और उत्पादक मीन्स मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम खींचने की सत्ता है, और वो दूसरों की प्रोडक्ट की कंपेयर में अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस या फिर इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। बिकॉज ऑफ सोर्स कोड इज़ अवेलेबल, सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है। मैन्युफैक्चरर्स में कंपटीशन होने के कारण प्राइस भी कम है, और कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने जो डिवाइस है उसमें नए फीचर ऐड करने के लिए हमेशा क्या रहती है, रेडी रहती है। इससे अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस और रिच मल्टीमीडिया सपोर्ट हमें प्राप्त होता है, और इससे लेटेस्ट स्मार्टफोन और टैबलेट के हार्डवेयर फीचर्स को एक्सेस और कंट्रोल भी किया जा सकता है, जैसे मल्टी टच गेस्चर के साथ टच स्क्रीन फ़ोन लोकेशन इंफॉर्मेशन मीन्स सैटेलाइट के उपयोग से पोजीशन, मोशन सेंसर, वायरलेस नेटवर्किंग। कौन सी होती है वायरलेस नेटवर्किंग? 2G, 3G, 4G मोबाइल नेटवर्क, फिर वाईफाई, ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC, ये इन्हें क्या कहते हैं? वायरलेस नेटवर्किंग। देन वॉइस एंड वीडियो टेलीफोनी, टेक्स्ट मैसेजिंग मीन्स SMS, इंटरनेट एक्सेस, पॉडकास्ट सुनना, वेबकास्ट देखना, फिर लाइव टीवी, कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर जैसे ओनली बिल्ट इन एप्लीकेशन ही नहीं परंतु थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और खुद की एप्लीकेशन भी हम देख सकते हैं। सेंसरों के इन ड्राइवर्स सेटों में से प्राप्त इनपुट का चतुराई से यूज़ करके और एंड्रॉयड की बिल्ट इन कैपेबिलिटियों का यूज़ करके इनोवेटिव, हाईली इंटरैक्टिव, बहुत यूज़फुल और विजुअली स्टनिंग ऐप का भी हम डेवलप डिवाइसों के क्रिएटिव मोड के साथ साथ हो सकता है उनका डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ 3G एंड 4G मेक इट पॉसिबल टू मेक वीडियो कॉल्स वेयर द टू पार्टीज कैन सी ईच अदर। तो 3G और 4G वीडियो वाले को संभव बनाते हैं जहां दोनों पार्टी एक दूसरे को आमने सामने क्या करते हैं, देख सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन and information rich worldwide maps makes it possible to create location aware applications that guide you with direction in an unknown city, lead you to a restaurant when you are hungry, show you nearest bank branch or ATM when you need some cash, then take you to nearest shopping mall so you can use up that cash that you when one of your friend is by chance in the same area at that time, so you may meet them, and finally show you the bus, railway, metro routes on the map along with the schedule and guide you to the nearest station when you are ready to leave the city. The ability to access motion sensors is used by the operating system itself to switch between portrait and landscape modes when you rotate your phone. It is also used by games that are played by simply tilting and rotating the phone, an application that let you control the phone just by moving it. For example, if you are busy and your phone rings, you may simply turn it upside down to reject the calls. तो 3G और 4G वीडियो वाले को संभव बनाते हैं कि जहां दोनों पार्टी एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, और पोजीशन की इंफॉर्मेशन की उपलब्धता मीन्स मोबाइल की हाल की स्थिति जहां पर मोबाइल अभी लोकेटेड है, जहां पर मोबाइल अभी है, और इन्फॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वाइड मैपों ने लोकेशन अवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करना संभव बना दिया है, जो आप अननोन शहर में आपको डायरेक्शन के लिए गाइड करता है। दोनों मैप के रूप में वॉइस गाइडेंस जैसे कि नाउ टर्न लेफ़्ट जैसे आपको
सूचित करता है। जब आप भूखे होंगे तो आपको रेस्टोरेंट की ओर लीड करेगी। जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको नज़दीकी बैंक या फिर ब्रांच या फिर एटीएम की ओर लीड करेगी। जब आपको पैसों को खर्च करना होगा तो आपको नज़दीकी जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर आपको लीड किया जाएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड उस समय पर वो एरिया में है तो आपको उससे मिलने में भी मदद करेगी। और फाइनली आपको बस, रेलवे, मेट्रो रूट नक्शे पर दर्शाएगी। और जब आप शहर छोड़ने वाले हो तो आपको नज़दीकी स्टेशन भी बताएगी। मोशन सेंसरों तक पहुंचने की क्षमता को ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच स्विच कर देती है। जब आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं वह खेले जाने वाले गेम्स के द्वारा भी यूज़ में ले जा सकती है। और जब आप खेलने के लिए फ़ोन को हिलाते हैं या फिर मूव करते हैं और एप्लीकेशनों को भी मूव करते हैं तो आपको फ़ोन का कंट्रोल करने में भी वो हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिज़ी है और आपकी फ़ोन की घंटी जो बेल है वो रिंगिंग होती है, तब फ़ोन को सिंपली ऊपर ले जाकर नीचे कर देने से फ़ोन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप कॉल भी रिजेक्ट करते हो। यू मे यूज़ योर फ़ोन नेटवर्क और अ public/home wireless network means Wi-Fi hotspot to access the internet using Bluetooth. You may exchange files with another phones or laptop, connect a headset, hands-free set or the keyboard with your phone, etc. Using NFC, you may exchange contacts, visiting cards or files, or make payments by simply waving your phones at another device. Access to the camera enables that allows you to take a pictures and upload it to a social networking site instantly, or take the picture of a place or a product and obtaining more information about it, or scan barcode or QR code means quick response codes specially designed for mobile phones, etc. If your parents have a phone with a QR code reader, sometimes called barcode reader, application scan the code in figure 5.7 with it and uncover the message encoded in it. सी यहाँ पर आपको जो फिगर 5.7 है यहाँ पर है अ QR कोड, इसे हम कहते हैं अ QR कोड, और इसे समटाइम्स बारकोड रीडर भी कहा जाता है। तो इंटरनेट पर जाने के लिए आप अपने फ़ोन नेटवर्क का यूज़ भी करते हैं, या एक public/home वायरलेस नेटवर्क मीन्स वाईफाई हॉटस्पॉट का भी यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ करके दूसरे जो फ़ोन है या फिर कोई लैपटॉप पर फाइल है वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हेडसेट जो ऐड कर सकते हैं, हैंड्स फ्री सेट या एक कीबोर्ड आपके फ़ोन के साथ भी जोड़ सकते हैं। NFC का यूज़ करके आप कॉन्टैक्ट, विजिटिंग कार्ड या फिर फाइलें भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपके फ़ोन को दूसरे डिवाइस पर वेव करके पेमेंट कर सकते हैं। कैमरा पर एक्सेस करने से एप्लीकेशन आपको पिक्चर लेने की और उसे सोशल नेटवर्क साइट पर अपलोड करने की भी परमिशन देती है, या किसी प्लेस या प्रोडक्ट की पिक्चरें लेने और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की भी परमिशन देती है। बारकोड या फिर QR कोड्स, ओके, तो ये QR कोड स्पेशली मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसे हम QR कोड रीडर मीन्स कई बार उसे हम बारकोड रीडर भी उसे कहा जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी through in early stages not only enables you to issue voice commands to your phone, it also allows the user to dictate notes and messages and search the web simply by speaking out what you are looking for. Android also has security features. It provides a well-known programming system for developing apps with a large set of built-in functions. The biggest advantage Android enjoys is that it is backed by the search giant Google. It already has a large number of programmers developing apps for the platform, and hundreds of thousands of apps have already been developed for it, including apps for various phones-related functions
internet surfing, email, chat, social networking, photo editing, audio and video playing and editing, office productivity like word processor, spreadsheet, presentation, simple and highly demanding 2D and 3D games, etc. Generally, Android phones have access to Google Play App Store, which at the time of writing had 6 lakh apps. Some other companies have their own apps store for their Android phones. तो वॉइस टेक्नोलॉजी के कारण अब फ़ोन पर वॉइस कमांड देना भी पॉसिबल हो गया है और वो यूज़र को नोटिस डिक्टेट कराने की, मैसेज डिक्टेट कराने की भी परमिशन देता है। केवल बोलने मात्र से आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो क्या करता है, सर्च कर देता है। और एंड्रॉयड का एक सिक्योरिटी फीचर्स भी है और एंड्रॉयड है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है, तो उसे सर्च जायंट गूगल का पीठबल कहा जाता है और इसके पास बहुत बड़ी संख्या में प्रोग्रामर्स डेवलपिंग ऐप्स भी होते हैं और इसके लिए सैकड़ों हज़ारों ऐप्स को डेवलप किया गया है जिनमें फ़ोन के फंक्शन से संबंधित बहुत सारी ऐप्स होती है, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल, चैट, सोशल नेटवर्किंग, फ़ोटो एडिटिंग जैसे बहुत सारे, और हाईली डिमांडिंग जो 2D और 3D गेम्स और ऐसे बहुत सारे गेम्स भी उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और जिसकी संख्या ये लिखते समय लगभग 6 लाख ऐप्स है। और कई बहुत सारी जो अन्य कंपनियां हैं उनके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वो खुद के ही ऐप स्टोर्स है, उनके खुद के ही ऐप के लिए ऐप स्टोर है। नेक्स्ट इज़ एंड्रॉयड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में एंड्रॉयड, in spite of the seemingly large differences, operating system for mobile phones follows the same general principles that we discussed above. They perform similar functions, have analog components and fit in the same general definitions of an operating system. The tablets presently have 7 inches or 10 inches touch screens and therefore are comfortable to work with. They provide almost all features for users which are available on normal PC or laptop. However, the challenges faced by the mobile phone operating system is a resource constrained environment, means smaller screen, less processing power, less memory, and the need to conserve battery power, need to support different set of input/output devices, and far greater variation in a hardware. In recent times, the fast pace of technological advancement has also made the job more difficult, but it is the same development that has enabled us to do things that were not even conceivable in the not so distant past. We are living in an existing era. तो ज़्यादा अंतर देखने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि जो सभी मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सामान्य सिद्धांत का उपयोग होता है और जिसका हम डिस्कस पहले कर चुके हैं और वो सेम वर्क करते हैं। उनके कंपेयर घटक होते हैं और मीन्स उनके एनालॉग्स कंपोनेंट, उनके तुल्य घटक होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की सामान्य व्याख्या में फिट बैठते हैं। आजकल टैबलेट में ज़्यादातर 7 इंच या फिर 10 इंच के टच स्क्रीन होते हैं जिन पर कार्य करना बहुत इजी होता है और वे यूज़र्स, यहाँ पर डेवलपर्स नहीं हैं, सिर्फ यूज़र के लिए सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो नॉर्मल पीसी या फिर लैपटॉप पर प्रोवाइड होते हैं, पीसी या फिर लैपटॉप पर हमें उपलब्ध होते हैं, प्रोवाइड किए गए होते हैं। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट चुनौती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अलग अलग सेटों को सपोर्ट करने की आवश्यकता और हार्डवेयर में ज़्यादा वेरिएशन की भी चुनौतियाँ होती है। टेक्नोलॉजी की तेज़ वृद्धि ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है, परंतु इसी विकास के कारण भूतकाल में मीन्स पास्ट में असंभव लगने वाली वस्तुएं आज भी संभव हो पाई है। ओके, और आज हम उत्तेजनापूर्वक काल में भी जी रहे हैं। तो यहाँ पर अपना ये जो 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्लीट होता है। सो यू हैव टू वॉच एंड लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली।